بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن، جس میں آج آپ سن سکیں گے دنیا سے آنے والی آج کی چاند اہم خبریں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہمارے اس چینل کی کوئی بھی لیٹسٹ نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کو جناب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینی نوجوانوں پر مسجد اقصیٰ میں ربڑ کی گولیاں فائر کرنے، گرینیڈ سے حملوں اور تشدد پر اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوان نے کہا کہ انقرہ نے اس واقعے پر عالمی اداروں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ جمعہ کے روز مسجد اقصیٰ اور مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس کی فائرنگ سے 205 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اسرائیل کے 16 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی تھی۔ بعد ازاں ہفتے کے شب بھی اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ کے قریب عبادت کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر حملہ کر کے 80 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ مذکورہ واقعے کے بعد فلسطینیوں کے حقوق اور یہودی آباد کاروں کی جانب سے مقامی فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر اسرائیلی پولیس کے حملوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل کی سپریم کورٹ بھی اس معاملے پر سماعت کرے گی۔ استنبول میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے تمام مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے اسرائیل کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوان ظالمانہ واقعات پر خاموش ہیں، وہ پارٹی ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ظالم دہشت گرد ریاست اسرائیل بے رحمی اور غیر اخلاقی طور پر بیت المقدس میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور تمام متعلقہ عالمی اداروں کو فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی فورسز کے مظالم کے خلاف ترکی کے دیگر عہدیداروں اور اپوزیشن نے بھی فوری طور پر مزاحمتی بیانات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یروشلم میں امن و امان بحال کیا جائے گا اور عبادت کا حق دیا جائے گا۔ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں پر اسرائیلی حملے کے خلاف انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے اور استنبول میں قونصل خانے کے باہر کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کے باوجود سینکڑوں افراد جمع ہو کر پرتشدد واقعات کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ترکی نے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی اسرائیلی منظم کوششیں طویل قانونی جنگ کی خلاف ورزی ہے اور ترک صدر نے بے دخلی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ طیب اردوان نے خبردار کیا تھا کہ دوسری صورت میں ظالم یا ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعے کو مشرقی بیت المقدس میں رات کے وقت ہونے والی جھڑپ میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی صحت ورکرز نے بتایا تھا کہ کم از کم 205 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے تشدد میں کمی کا مطالبہ سامنے آیا، جبکہ یورپی یونین اور اردن سمیت دیگر نے ممکنہ بے دخلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات UAE نے بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کے حملوں کے بعد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے تل ابیب کے منصوبوں کی مذمت کی ہے، جس کے بعد گزشتہ روز بھی اس علاقے میں کشیدگی دیکھی گئی اور اسرائیلی فورسز نے 80 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جبکہ ایک اسرائیلی افسر کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر مذاکرات اور افغان تنازع سیاسی تصفیے کے ذریعے حل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے 3 روزہ دورہ سعودی عرب کے دوسرے دن جاری ہونے والے اس مشترکہ بیان کو خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب نے کشمیر کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کا کہا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں فریقین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب مسائل، بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کے ساتھ تفصیلی ملاقات کے بعد افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور حال ہی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی سے متعلق سمجھوتے کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ برس اسلام آباد کو ریاض کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر خصوصاً اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے ذریعے پاکستان کے لیے حمایت کی توقع تھی۔ تاہم سعودی عرب نے اس درخواست کو رد کرتے ہوئے وزرائے خارجہ کے اجلاس کو طلب کرنے کے پاکستان کے اصرار پر $1 ارب قرض کی واپسی کا مطالبہ کر دیا تھا، جس پر پاکستان کو چین سے قرض لے کر سعودی عرب کو ادائیگی کرنا پڑی۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل میں باہمی مشاورت کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وسیع بنیاد اور جامع سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے اور افغان فریقین پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے سیاسی حل کے تاریخی موقع کا ادراک
इश्तराक करते हुए इससे फ़ायदा उठाएँ। अलावा अज़ीज़ दोनों फ़रीक़ैन ने कसीरल जहाती फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ तमाम रियासतों के आलमी क़वानीन के फ़ैसलों और असूलों व अच्छे हमसाया तल्लुक़ात पर अमल के तहत रियासतों की खुदमुख्तियारी और इत्तेहाद का एहतराम, उनकी अंदरूनी मामलात में अदम मुदाख़लत और पुरअमन तौर पर उनके हल की अहमियत को उजागर किया है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी और बरादराना तल्लुक़ात को मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा किया और दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के साथ-साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़्याल किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को एक जदीद तरक्की याफ़्ता और फ़लाही रियासत में तब्दील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के विज़न की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। शामिल करते हैं इसके बाद अगली खबर को। सऊदी अरब ने रवां साल ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतज़ामात के साथ हज करने का ऐलान किया है। वज़ारत हज व उम्रा ने इतवार को एक बयान में कहा है कि हज के ऑपरेशनल उमूर और तफ़सीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि इस साल हज कराया जाएगा। ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतज़ामात होंगे। महफूज माहौल में जुमला सहूलतों और आसानियों के साथ हज के काम अंजाम दिए जा सकेंगे। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि सऊदी सेहत इदारे ज़ायरीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इक़दामात और जुमला हालात का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। SPA के मुताबिक वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई कि इस साल जुलाई में हज की ऑपरेशनल उमूर की तफ़सीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा के तर्जुमान हशाम सईद ने कहा कि इस साल हज कराने के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। इनमें यह भी शामिल है कि हज इन लोगों को कराया जाएगा जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हों। तमाम सेहत इदारे और कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल की मुकम्मल निगरानी के लिए तैयार हैं। सईद ने इतवार को मुमलिकत में कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदी अरब इस साल हज कराने के लिए पुरअज़्म है। शामिल करते हैं इसके बाद अगली खबर को। इंडिया ने कोरोना वायरस की अबतर होती सूरत-ए-हाल के पेश नज़र साबिक़ फ़ौजी डॉक्टरों की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है। इंडिया में रिकॉर्ड केसेज़ और हलाकतों के बाद मुल्क गिर लॉकडाउन लगाने का मुतालबा ज़ोर भी पकड़ने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन वज़ारत दिफ़ा के बयान के हवाले से बताया गया है कि आर्मी के तकरीबन 400 रिटायर्ड डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। बयान के मुताबिक आर्मी के दीगर डॉक्टर की खिदमात भी ऑनलाइन तिब्बी मशरों के लिए हासिल की गई है। इंडिया में हर दूसरे या तीसरे दिन रोज़ाना केसेज़ और हलाकतों की रिकॉर्ड तादाद सामने आ रही है और इतवार को मुसलसल दूसरे दिन 4000 से ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। कई इंडियन रियासतों ने गुज़श्ता महीने से कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त लॉकडाउन का नफाज़ कर रखा है, जबकि दीगर ने अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी, सिनेमा, रेस्तरां, बाजार और शॉपिंग मॉल बंद रखे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है कि वो मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान करें, जिस तरह पहली लहर के दौरान किया गया था। इंडियन मीडिया एसोसिएशन ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ पहले से ऐलान कर के लॉकडाउन नाफिज करने का मुतालबा किया है। मोदी कंप के मेले के इनेकाद की इजाज़त देने और बड़े पैमाने पर इलेक्शन रैलियाँ मुनक्कद करने पर भी सख्त तनकीद की जद में है। इतवार को वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4092 हलाकतें हुईं, जबकि 4,03,000 नए केसेस सामने आए हैं। शामिल करते हैं इसके बाद अगली खबर को। चीन के काबू से बाहर हो जाने वाले खलाई रकड़ का मलबा बहर हिंद में गिर गया। चाइना स्पेस एजेंसी के बयान के मुताबिक लॉन्ग मार्च 5B का टुकड़े चीन के मकामी वक्त के मुताबिक इतवार को सुबह 10:24 को ज़मीन के माहौल में दाखिल हुए और 72.47 डिग्री मशरक़ी तूल बुलंद और 2.65 अर्ध बुलंद में समंदर में गिर गए। ख्याल रहे कि यह रकड़ चीन के नए स्पेस स्टेशन के लिए पहले हिस्से को खला में भेजने के लिए 29 अप्रैल को रवाना किया गया था और मिशन की कामयाबी के बाद इसे खला में बेकाबू छोड़ दिया गया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने 7 मई को कहा था कि रॉकेट के मलबे से किसी किस्म के नुकसान का इम्कान नहीं, क्योंकि ज़मीन में दाखिल के दौरान इसका बेशतर हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। बॉर्डर यूनिवर्सिटी के माहिर जोनाथन मेडकोल के मुताबिक लॉन्ग मार्च 5B के वाक़े से इस तरह के रॉकेटों को ज़ार छोड़ देने के वाक़े आम हो सकते हैं। इनका कहना था कि चीन की जानिब से स्पेस स्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों को इसी तरह मिशन मुकम्मल होने पर छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च 5B के लिए डिज़ाइन फीचर था। ख्याल रहे कि चीन का स्पेस स्टेशन 2022 तक मुकम्मल फ़ाल होने की तवक्को है। इससे कबल 10 मिशन को ज़ेरे ज़मीन के मदार में स्पेस स्टेशन के मज़ीद हिस्से भेजकर असम्बल किए जाएंगे। चीन का ये स्पेस स्टेशन मुकम्मल होने पर ज़मीन के ज़ेरी मदार में 15 साल तक मौजूद रहेगा। 2022 के आखिर तक मुकम्मल होने पर टी शक्ल के इस स्पेस स्टेशन का वज़न 66 टन होगा, जो कि मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा है। शामिल करते हैं इसके बाद अगली खबर को। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर वक्त से पहले ही ईद उल फितर की तारीख का ऐलान कर दिया है। इससे कबल उन्होंने रमज़ान के आगाज़ का भी ऐलान किया था, तहम उस वक्त उनके पास
वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मनसब था, जो हाल ही में उनसे लेकर शबली फराज को दे दिया गया था। ख्याल रहे कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मनसब संभालने के बाद से फवाद चौधरी हर साल वक्त से पहले ही रमज़ान और ईद की तारीखों का ऐलान करते आ रहे थे। इसी तरह उन्होंने आज एक ट्विटर पैगाम में कहा कि अगरचे ईद का हतमी ऐलान रवायत हिलाल कमेटी ने करना है, लेकिन वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बनाए गए कैलेंडर और रवायत एप्लीकेशन के मुताबिक चाँद 13 मई को नज़र आ सकेगा और ईद उल फितर 14 मई बरोज़ जुमा को होगी। काबल अज़ीम महकमा मौसमियात ने भी शवाल का चांद 12 मई बरोज़ बुध को नज़र आने का इम्कान न होने के बराबर इकरार किया था। महकमा मौसमियात के जारी बयान के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 12 मई को पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात 12:01 पर होगी, इसलिए 12 मई यानी 29 रमज़ान को नए चांद के नज़र आने का इम्कान न होने के बराबर है। यानी इस मरतबा 29 की बजाय 30 रोज़ों का इम्कान ज़्यादा है और ईद उल फितर 14 मई बरोज़ जुमा को हो सकती है। ताहम इसका फैसला रवायत हिलाल कमेटी के इजलास में होगा, जो 12 मई को मुनक्कद होगा। ख्याल रहे कि सरकारी सतह पर चांद की रवायत का ऐलान करने का इख्तियार और रवायत हिलाल कमेटी को हासिल है। ताहम गुज़श्ता 2 बरसों से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रमज़ान से काफ़ी पहले ही चांद नज़र आने की तारीखों का ऐलान कर देते हैं। अलबत्ता रवां बरस रमज़ान मुबारक के चांद का कबल अज़ वक्त ऐलान वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से किया गया था। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के चांद के मामले पर तकरीबन हर साल तनाज़ात सामने आते रहे हैं, जहाँ पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ाई की जानब से हर साल मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी के ऐलानात के बरअक्स एक दिन कबल ही चांद देखने का ऐलान किया जाता रहा है। ताहम रवां बरस कई दहाई बाद मुल्क भर में एक ही दिन रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।